The APSU press conference is regarding 4 points. Just now we have met the Honorable Chief Minister at his official his office in the Civil Secretariat. We have submitted and had a long deliberation with him, about 1 hour deliberation in his office regarding the request for tabling of offspring bill draft in the coming Legislative Assembly session. Secondly, immediate appointment of Vice Chancellor for Arunachal University, Pasighat, and also for immediate recruitment of assistant professors for government colleges in the state. And then regarding the Chakma Hajong issue and the interstate Assam Arunachal boundary issue. तो मैं सबसे पहले अरुणाचल जो स्टेट यूनिवर्सिटी पासीघाट का उस विषय पे मैं आता हूँ. अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट जो बिल आया था वो 2012 को आया था, and it has been a long time now, and since then there have been many colleges now that have been established in the state. Almost every district of our state have a college, and every year thousands and thousands of young student friends are passing out doing their graduations and are in pursuits for post-graduation in the state. But because of the lack of avenues, because of the absence of state university in the state, because only the lone university in the state is a central university state, that is Rajiv Gandhi University, and its intake capacity is limited. So, as per our data that we have collected, like last time, 15,000 का मापिक students pass out किया, अपना graduation course किया, और यहाँ में जो intake capacity it's almost 10% ही है. तो उस बीच में बहुत सा students विद्यार्थी जो है जो graduation करके various colleges from all over the state, from across the district, अपना जो post graduation उसको fulfill नहीं कर पाता है. And who are from affluent families, जो लोग अच्छा परिवार से है, they somehow manage to get into private universities, and कुछ लोग बाहर जाता है, but maximum percentage they ऐसे ही भेज जाता है. So we have requested, and this is not only the request of APSU, this is the request of entire student community of the state, and also of the people. खासकर वहाँ जो जब हम लोग ने देखा last time when Honorable Chief Minister visited Pasighat, there were memorandums submitted by the Adi Bane Kabang and also by Adi Students Union, and we have been actively pursuing for the process for the immediate appointment of vice chancellors and other staffs for the new state university. और ये खुशी का बात है, we are making it public that the Honorable Chief Minister has assured to the APSU delegation that the appointment process और जितना भी वहाँ में जो है एक मिनिमम लेवल में जो स्टार्ट करना है ये आने वाला एकेडमिक सेशन से शुरू करेगा, ऐसा उन्होंने हम लोगों का जो बीच में हम लोग जब बातचीत हुआ उन्होंने हमें बताया. सो उसको हम लोग मान के चलेगा कि ये जो आने वाला जो एकेडमिक सेशन में जो वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट होना है, जो क्लासेस जो कुछ सब्जेक्ट वन गो में भी नहीं हो पाता है, कुछ सब्जेक्ट्स को लेके जो शुरुआत करना है वो शुरू होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को एश्योरेंस दिया है. और उसका most hottest debated issue right now in the state, every time whenever APSU leaders come in the social media or in the press conference, everyone is asking about the offspring issue. और ये जो offspring issue है, ये this is not only APSU issue, मैं पहले भी बोला हूँ, this is a collective, cumulative aspirations of the people of the state, indigenous people of the state. और इसको लेके हम लोग ने शुरू में जितना भी यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो इंडिजिनियस सीबीओ से हम लोग ने 2018 को मीटिंग बैठाया, हम लोग ने उसमें चिंतन मंथन किया, उसके बाद आगे प्रोसेस को बढ़ाया. सीएम को हम लोग ने ऑनरेबल सीएम को मेमोरेंडम दिया, और उसके बाद स्टेट लेवल एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेजाता मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री आलो लिबांग. लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप और बीच में कोरोना का कारण से थोड़ा देर भी हो गया ये इशू को लेकर.
और कभी जो मैडम निहारिका राय था उस समय, एक समय वो थोड़ा इंडिफरेंट रहा हम लोगों को, तो उसको चलते हुए हम लोगों ने एक समय हम लोगों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ा। बट टुडे हम लोगों ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जो अपसू का भी अपना जो हम लोग का चाह जो वो है, यहाँ का लोगों का जो ऑफस्प्रिंग इशू को लेके जो ये है चाहत है, उसको हम लोग ने बताया है। एंड वी हैव स्ट्रांगली डिमांडेड एंड रिक्वेस्टेड हिम दैट आने वाला जो असेंबली सेशन है ये जनवरी या फरवरी में है, इसमें जैसे भी ये जो बिल जो है टेबल होना है और एक बनना है, और हम लोग ने वो किया। एंड ऑनरेबल सीएम हैज एश्योर्ड अस कि ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑफस्प्रिंग का जो बिल है, जो प्रोसेस है, इसके ऊपर में जो स्टेट लेवल कमिटी है उसको वो भी एक एडवाइजरी एक सजेशन भी देगा, बोला कि ऑल द सीबीओस को विद अपसू एंड देन जो स्टेट लेवल जो कमिटी है एक बैठक बैठ के, और जो उसमें जो रिजल्ट आएगा उसको उन लोग कैबिनेट में पास करके इसको भी उन लोग आगे बढ़ाएगा, ऐसा उन्होंने हम लोगों को एश्योरेंस दिया है। और उसके बाद जो चकमा हाजोंग इशू है, अपसू हैज रिट्रेटेड और long standing demand that they have to be deported from the state. We have told the Honorable Chief Minister that we welcome the statement that they have. The Honorable Law and Justice Minister and he himself has given from time to time regarding the deportation, shifting of Chakma Hajong from the state of Arunachal Pradesh. और उसका बाद जो बीते दिन में जो सेंसस को लेके जो बात हुआ है और जो एरिया डेमोक्रेशन का बात को लेके बात चला है, उसके ऊपर में भी हम लोगों ने फिर रिट्रेट किया कि जो सेंसस जो है होना है, और जितना भी यहाँ उसको एक कम्युनल लाइन, एक रेशियल प्रोफाइलिंग का जो एक नाम देने का जो कोशिश कर रहा है, एक रंग देने का कोशिश कर रहा है, उसको खारिज करना है। और सीएम हैज ऑलरेडी उन्होंने हम लोगों को बताया कि वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि सेंसस को बंद करना है। ही हिमसेल्फ हैज एडमिटेड एंड एग्रीड दैट दिस इज इन रूटीन प्रोसेस, तो उसको रोकने का कोई वो नहीं है। तो उन्होंने फिर से डिप्टी कमिश्नर को भी कन्वे किया, बोला चांगलांग डिप्टी कमिश्नर को कि द रूटीन सेंसस हैज टू बी डन, तो उसमें ये है। एंड देन रिगार्डिंग द स्टेट इंटर स्टेट असम अरुणाचल बाउंड्री, वी हैव told him about our APSU's extensive tour last time in the month of August. हम लोगों ने जहाँ जहाँ affected areas में हम लोगों ने delegation का रूप में visit किया। We have collected the aspirations, उन लोगों का जो interstate boundary dwellers है, उन लोगों का what they exactly want from the state government for arriving an amicable solution with the neighboring state Assam. तो हम लोग हम लोग ने लास्ट टाइम जो टूरिंग किया उसका हम लोग कंपाइलेशन करके हम लोग ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग दिया, आज हम लोग दिया है। और पहले जब स्टेट लेवल का जो कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री बामांग फेलिक्स जी का, उसमें भी हम लोग ने दिया है। और हम लोग ने आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को फिर से हम लोग ने रिट्रेट किया कि द इंटर स्टेट असम अरुणाचल बाउंड्री नीड टू बी गिवन ए न्यू इम्पेटस, जल्द से जल्द उसका ऊपर में ये होना है, प्रोसेस होना है। और उन्होंने भी हम लोग को कन्वे किया कि दे हैव ऑलरेडी हैड बीन सिटिंग विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और अमित शाह जी भी काफ़ी इसके ऊपर में ये है, उन्होंने भी कीन इंटरेस्ट दिखाया। और दोनों जो चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसके ऊपर जल्दी से एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन का उसमें आगे बढ़ना है बोल के उन्होंने हम लोगों को बताया। तो हम लोग ने जो छूट पूछ जो हमेशा घटनाएं होता है, जो प्रॉब्लम्स लाइक वी हैव सीन दैट इन किमिन in the areas there had been eviction notices sent by Assam officials, and we have seen that PMJ's roads are not being allowed to constructed, developmental works are being stopped in Kanku Circle. We have told him that the concrete pillars were erected at Pain Bureau in Changlang district. There WRC pills have been damaged by the Assam officials in Kamkerusa and Hasurusa in Kanubari and Longding district. तो हम लोगों ने जो डिटेल हम लोग जो जाके ग्रास रूट में जो लोगों का बीच में हम लोग जाके हम लोग ने जो मिला उन लोगों का बात को हमने बताया। और हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया कि जब तक बातचीत शुरू नहीं होता है और जब तक एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं आता है, ये जो घटनाएं हमेशा होता है उसके ऊपर भी रोक होना है। तो चीफ मिनिस्टर हैज कन्वेड अस दैट ही हैज डिस्कस विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम दैट कि ये जो अभी जो हमेशा जो प्रॉब्लम्स होता है उसको डीसी लेवल से, उससे नीचे नहीं, डीसी लेवल से अभी यहाँ जैसे अगर प्रॉब्लम होता है तो जाना, अरुणाचल का जो इशू जैसे कि दोलुमुख में होता है, कांकेरुसा में होता है,
हादसे में उड़ीसा में होता है, उसमें नॉट लेस देन ए डिप्यूटी कमिश्नर उसमें नहीं जाना है, उन्होंने ऐसा बातचीत किया बोल के हम लोगों को बताया है. सो ओवरऑल इट हैज़ बीन पॉजिटिव इंटरेक्शन एजुकेशन सेक्टर में बोलो या सोशल इश्यूज में बोलो. सो वी फील दैट इट वाज अ नेसेसिटी ऑन पार्ट ऑफ APSU टू टेल द पीपल ऑफ आवर स्टेट जो हम लोग का बीच में बातचीत में. सो इन चंद शब्दों के साथ एनी क्वेश्चनर्स विल टेक ना हो जाएगा. मैं कुछ तो नहीं है, पूरा मेरा GS ने बोल दिया जितना भी है. बाउंड्री इशू में असम CM का साथ बात चल रहा है पॉजिटिवली वे में, और दोनों जल्दी भी मिलने वाला है. ये शुरू किया. चकमा और वजन का इशू को जो हमारा होम मिनिस्टर है अमित शाह जी का साथ में बात चल रहा है, और इसीलिए भी मिल के आया है. इसका भी बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू करेगा जो भी किस तरीक़ा से करना है. और सबसे आज का हम लोग खुश है कि जो ऑफ स्प्रिंग है जिसका माँ जो है ट्राइबल के पिताजी जो आउटसाइडर का है, उसको CM ने एश्योर किया है. तो इंटर हम लोग एजुकेटिव टीम गया था. तो एक्चुअली हर एक इशू को जो है हम लोग टेक्निकल वे में पीस वे में जा सकता है बातचीत से. तो वो आया इसलिए सारा अरुणाचल का जो आने वाला के लिए और जो भी हम लोग यहाँ में अभी जिसका दरार है उसको आज CM ने इशू किया कि जनवरी फरवरी का जो स्टेट असेंबली में डिक्लेयर कर देगा, पास कर देगा. क्योंकि ST किस तरीक़ा से इशू होना चाहिए बहुत पहले से था, लेकिन इसको मोटिवेट नहीं किया गया और उसको ये नहीं किया ना. इसलिए हम लोग भी खुश हैं और इंटर अरुणाचल भी खुश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के लिए एटलीस्ट अरुणाचल गवर्नमेंट या स्टूडेंट मूवमेंट काम कर रहा है. तो इंटर जो आज से जो पैदा कर रहा है, जो बच्चा जो आज से जन्म लिया वाला के लिए वो कुछ खबर है. क्योंकि हम लोग का ओरिजिन जो है ख़त्म होने वाला था, जो डायलूट हो रहा था. जो आउटसाइडर का बच्चा जो हम लोग का टाइटल लेके, इंडिया में ऐसे होता नहीं है, एक दो जगह मेघालय है माँ का टाइटल लेता है, लेकिन इंटर मोस्ट ऑफ इंडिया में ऐसे होता नहीं है. लेकिन अरुणाचल में काफ़ी ऐसे चोरी चपके हुआ है, ये भी बंद हो जाएगा. तो ST का पैटर्न भी ऑल ओवर अरुणाचल में सेम होगा. नहीं तो पहले एक DC का इशू डिफरेंस होता है, एक का डिफरेंस होता है, ऐसे नहीं होगा, सेम पैटर्न में होगा. तो आज अरुणाचल का स्टूडेंट को या का पब्लिक को या का जितना भी माँ पिताजी है या भाई बहन है बताना चाहूँगा कुछ खबर है. ये रूल जो बन जाएगा और पॉजिटिव वे में पीस वे में, तो जिसको भी जो ले चुका है कंप्लेन करना है पॉलिसी के बाद वे कर सकता है. इसमें भी पीस वे में, इलीगल में नहीं है, पीस वे में कर सकता है. तो ऐसे हो कि जो हम लोग का एक डिमांड था 2018 से हम लोग शुरू किया, तो जनवरी नहीं तो फरवरी में कंप्लीट होने जा रहा है कुछ खबर है. और ये मेरा चेयरमैन साहब है कि ये भी कितने काफ़ी मूवमेंट किया हम लोग. तातुंग तका जी है मेरा कन्वीनर है, तो हम लोग काफ़ी मूवमेंट किया है. तो मूवमेंट का रिजल्ट जो आज CM एश्योर हो गया तो सब एश्योर है. इसलिए मैं पहले से बोला है कि हमको बहुत आउटसाइडर लोग जो भी टेक्निकली जो एक्सपर्ट है या जो भी लोगों को कानूनी जानने वाला बहुत बोलता है ऐसे नहीं. देखो ये रूल का मनाने का मीनिंग जो वो है कि स्टेट, हम लोग एक स्टेट है तो उसका अंदर में हम लोग का लैंग्वेज, रिलीजन, हम लोग कल्चर, हम लोग का हर एक चीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करना है ना. इसलिए स्टेट अंदर में जो भी रूल बनता है वो होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले बनना चाहिए था, नहीं हुआ है. और जिसको कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अभी गाली दे के फ़ायदा नहीं है. तो खास करके मेरा थ्रू मीडिया से मेरा चीफ सेक्रेटरी को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस दिन कैबिनेट में आएगा तो सबसे पहले आप आवाज़ उठा देना चाहिए कि अरुणाचल का या ओरिजिन जो है ख़त्म होने वाला, इसलिए ये रूल जो बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग किसी को शादी करना माना नहीं है, शुरू से बोला है, लेकिन शादी करो जाओ, लेकिन मेरे यहाँ अपना राइट को नहीं ले सकता है, बस वही था. तो बहुत खुश है हम लोग और CM एश्योर किया. और आलो लिबांग साहब को हम लोग बहुत पहले 23 में हम लोग APSU का जो ड्राफ्ट था, तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का कमेटी का जो ड्राफ्ट था उसको ये करके जोड़ के
कंपेलिंग करके हम लोग ने 23 में हम लोग ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। जो हम लोग का जो ऑफ स्प्रिंग का चेयरमैन है अभी आउट ऑफ स्टेशन है, जैसे आएगा सीएम साहब का कहना है कि एक लास्टली एक सेटिंग करना है तो कैबिनेट में भेज दो सीबीओ का साथ। सीबीओ मीन्स एटीएफ ही होगा, इतना नहीं आएगा, लेकिन इसका साथ सेटिंग करके ये कैबिनेट में भेजना है। कैबिनेट में वो ज़रूर पास करवाएगा और असेंबली में भी ज़रूर पास करवाएगा, ये उसने एश्योर किया है। बहुत कुछ का बात है। तो मैं तो देखा है हर एक चीज़ को पॉलिटिकलाइज कोई भी नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ कोई पॉलिटिकलाइज नहीं है। हम लोग यहाँ अरुणाचल फ्यूचर को हम बचाने का काम किया है। तो इस तरीक़ा से आज का मुलाकात काफ़ी 1-1.5 घंटा 2 घंटा जैसे काफ़ी हम लोग बातचीत डिटेल हर एक चीज़ बाउंड्री प्रॉब्लम को लेके भी, चकमा महाजन को लेके भी, हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी को लेके भी काफ़ी हम लोग डिस्कस किया बहुत। तो हम लोग टीम आज खुश है और देखता है और कुछ। और आपसू को बहुत लोग समझता है कि आपसू वैसे करना वो करना। आपसू का मीनिंग जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी को किस तरीक़ा से बनाना है, हाँ पॉलिसी कैसे होना है और अरुणाचल का फ़ायदा क्या होना चाहिए और कौन हम लोग अटैक करना है, उसको प्रोटेक्ट के लिए हमेशा रहता है आपसू। लेकिन बहुत लोग हमें आपसू को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, छोटा छोटा में भी इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। जब स्टेट ख़त्म होने वाला हम लोग है ना, तो आने वाला आते रहेगा, जाने वाला जाते रहेगा, लेकिन हम लोग 3 जन में जो मेरा मैनिफेस्टो में था ऑलमोस्ट मैंने किया है। मेरा अपना मैनिफेस्टो था, आपसू का मैनिफेस्टो था, हम लोग टीम एजुकेटिव मेंबर का एक डिसाइड कर रहे, ऑलमोस्ट हम लोग करके जा रहा है। बहुत लोग पत्थर मार के दूर से काम करवाता है, हम लोग रिक्वेस्ट करके करवाता है। इस तरीक़ा से ये चीज़ जो आज फाइनली हम लोग ऑफ स्पीक इशू को आज हम लोग रिजॉल्व करके आया, तो जस्ट असेंबली में पास करना है बस। थैंक यू। एग्जाम्पल मान लो एक एसटी लेने के लिए आपको जो अभी 15 डेज वेट करना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल मान लो ग्राम पंचायत से लेकर आप डीसी तक का है। अर्बन जो एरिया है उसका अलग कमेटी होगा और रूरल से लेकर सर्कल तक अलग कमेटी होगा, सर्कल से लेकर अर्बन तक अलग कमेटी होगा। और इसमें जैसे कि मेरा बच्चा है, मैं अकेला जाके बाप होने से एसटी नहीं ले सकता है। मेरा सबूत वीकनेस 2 तो कंपलसरी चाहिए। ये है, अगर मैं एक बाप हूँ, किसी बच्चा को हम झूठ मार के एसटी दिला दिया कि सबसे पहले हम जेल जाएगा। तो इसमें जो है 3 IPC का वो रूल लागू किया गया है और जो बच्चा भी एसटी भी कैंसिल हो जाएगा जितना वीकनेस से जाएगा। इसलिए यहाँ में जो बहुत कमेटी है, तो कमेटी जो आप साइन करने का बाद आप पब्लिकली वह नोटिफाइड करेगा कि ये लोग एसटी इशू करने जा रहा है और कोई कंप्लेंट है क्या, कोई है। और जो ऑलरेडी ले चुका है, अगर रूल का हिसाब से कोई कंप्लेंट करता है तो सेम फार्मूला में जाएगा, इंक्वायरी होगा, उसका कमेटी होगा। इसमें भी 1 ग्राम तक भी अगर एक हेड ऑफ विलेज या गांगबरा या कोई भी सीओ तक भी झूठ मारता है, जो झूठ मारेगा वो जो IPC का हिसाब से कितना क्या नाम था ये किसी का हिसाब से ना वो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसमें झूठ नहीं मार सकता है और कोई भी लेता है इसको जो है सेक्रेट ऑफिसर को भी, किसी को भी कंप्लेन कर सकता है। अगर मैं पहले भी कहा है, कोई अगर ऐसे कुछ है तो कंप्लेन करेगा तो पॉलिसी के बाद एडप्ट होने के बाद कंप्लेन आपसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, अकेला नहीं रहेगा। तो यहाँ में जो है यहाँ में 3 IPC को हम लोग लगाया है कि ये हम लोग नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया। जो झूठ मारेगा 177, 193, 194 ये IPC एक्ट लगाया, क्योंकि इसमें जो गलत है, चाहे बच्चा अगर साइड से हो, चाहे ऑफिसर सही है, चाहे कोई भी अगर इसको गलत बोलेगा वो जो है जेल जाना ही पड़ेगा, पनिशमेंट बिल्कुल जाना पड़ेगा। ये बहुत सिस्टम बना दिया हम। मतलब कब तक ये प्रोसेस स्ट्रॉन्ग, मतलब अभी तो ऐसे जो चल ही रहा है, लेकिन स्टेप जो है ना जो टॉकिंग वो कब तक चलेगा? नहीं, रिसेंटली असम CM और अरुणाचल CM को बुलाया जो दिल्ली में, दोनों बात हुआ है। तो CM ने हम लोग को बताया कि
दोनों बहुत जल्दी सेटिंग होने वाला है। जो भी आउट ऑफ कोर्ट या कोर्ट में, मैक्सिमम तो मेरा ख्याल से आउट ऑफ कोर्ट में जाएगा, हमको भी लगता है, क्योंकि इसमें जो वन मैन कमिटी का हिसाब से नहीं हो पाया। तो हम लोग का लास्ट टाइम क्या ये था, हाँ, लोकल कमीशन का हिसाब से तो हम लोग 30 to 70% रिटर्न करना है अरुणाचल गवर्नमेंट को, लेकिन असम उसको रिजेक्ट किया, तब कोर्ट चला गया। तो तब भी दोनों बहुत जल्दी मिल के बात करेगा, क्योंकि इसको आप पीस वे में बैठ के बात करना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक में होने से कभी सोल्यूशन आएगा ही नहीं है। इसलिए मेरा तो मैं तो मानता हूँ और मैं तो सोचता हूँ कि असम का पब्लिक हो चाहे अरुणाचल पब्लिक हो, अगर दोनों सीएम डिसाइड करता है यहाँ से इस तरीक़ा से होगा, पीस वे में सब मानना चाहिए। क्योंकि किसी का चलो मान लो 1 बीघा मिट्टी जा सकता है, किसी का 10 मीटर जा सकता है, ये जो आगे पीछे थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए परमानेंट सॉल्व होने से हम सब के लिए खुश है।